11th chemistry. In the class 11 chemistry, we are discussing structure of atom. Structure of atom, that is chapter 2. That is chapter 2, and this is the video lecture second. This is the video lecture second for the chapter 2. Clear? So, chapter second, I told you how electrons were discovered through the cathode ray tube experiment. Okay, cathode ray tube experiment was done by William Crookes in 1879, and he said that a wave from negatively charged cathode moves towards the positively charged anode, and this wave was named as cathode wave. Okay, every wave is associated with a particle, and the particle associated with and the particle associated with cathode wave is a negatively charged particle, because the wave is also negatively charged, and that negatively charged particle was named as electron. Okay, later we will study, in the upcoming video lecture, we will study about the charge and this mass of an electron, how it was calculated. Okay, but in this video I will tell you about the properties of cathode ray. Cathode ray is, understand, negative wave. Okay, negative ray will start from the cathode, negatively charged ray, and move towards the anode. Now properties, what are its properties? Okay, so we will tell about the today's heading is properties of cathode ray. Properties of cathode ray. Okay, properties of cathode ray. Cathode ray. Okay, we will study the properties of cathode ray. Experimentally I will prove this also. Okay, so first property is they travel in straight line. They travel in straight line. They travel in straight line. Okay, cathode rays travel in straight line. सीधा निकलती हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाती. They travel in straight line. इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया? The apparatus, you know, there was a, in the apparatus there was a discharge tube. Okay, cathode was there. This perforated anode was there, negatively charged, positively charged, negatively, okay, positively charged. This voltage of 10,000 volts. अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा, you will come to know about the apparatus. I have explained this apparatus in detail in our video lecture 1. Okay, 10,000 volts. There was a vacuum pump. There was a vacuum pump also. Clear? And what was that? Okay, so cathode rays. First property of cathode rays, that they travel in a straight line. Okay, it was proved. How it was proved? Proof. Now the proof. How it proved? Okay, it was proved by placing a spin wheel. Spin wheel मतलब जो rotate करता है. By placing a spin wheel in the way of cathode ray. By placing a spin wheel. Spin wheel मतलब जो घूमता नहीं है, तुम घुमाते थे बचपन में, spin wheel होता है छोटा सा. By placing a spin wheel in the way of cathode, उन्होंने spin wheel लिया, तुम तो जो मर्जी ले लो, spin wheel लिया था उसने, Crookes ने. By placing a spin wheel in the way of cathode ray, its shadow appears. इन्होंने क्या किया? इस बीच में एक स्पिन व्हील लगा दिया. स्पिन व्हील मीन होता है विंड व्हील जैसा. ठीक है, इन्होंने एक स्पिन व्हील लगा दिया, बीच में उन्होंने स्पिन व्हील लगा दिया. ओके, तो जब कैथोड रे इससे टकराई, तो जब भी पता तुम्हें कोई दो कैथोड रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड से ओरिजिनेट हुई, ऐसे टकराई, बीच में क्या आ गया होगा? स्पिन व्हील आ गया होगा. दीज वर मूविंग कैथोड रेज. सो जैसे ये स्पिन व्हील से टकराई, तो पीछे स्पिन व्हील की शैडो आ गई. पीछे स्पिन व्हील की क्या आ गई? उसकी शैडो आ गई. पीछे स्पिन व्हील की शैडो आ गई. सो ओनली दोज रेज कैन गिव द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. जो स्ट्रेट लाइन में चलती है वही शैडो देगी. अगर स्ट्रेट लाइन में ना चलती, ऐसे निकल जाती, तो मुझसे टकराती ना, या स्पिन व्हील से टकरा, ऐसे निकल जाती, तो आइदर दे विल नॉट गिव द फुल शैडो, और कुछ हिस्से की शैडो देंगे. शैडो बनेगी नहीं अच्छे से. सो ओनली दोज वेव्स या दोज रेज व्हिच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन दैट कैन गिव शैडो. सो कैथोड रे आल्सो गिव द शैडो
of the spin wheel which was placed in between the discharge tube. So this proved that it gave the shadow of the spin wheel. It proved that cathode rays travel in a straight line. This was the first property of cathode ray, that they move in a straight line. Okay, got it? Okay. Now second property. First property, they travel in a straight line. Write it down. Straight line proof मैंने दे दिया. Okay. अब second property of cathode ray. We are discussing the properties of cathode ray. We are discussing the properties of the cathode ray. So second property is cathode ray is made up of material, is made up of particles, is made up of particles. ठीक है? अब तो तुम्हें पता है कैथोड रे किस पार्टिकल से बनी होती है. कैथोड रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल इनसाइड द मूविंग कैथोड रे. तो उस टाइम पे जब ये नया एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बाद में डिस्कस किया, उस टाइम पे इन्होंने ये बोला था कि कैथोड के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल है, कोई ना कोई पार्टिकल है. ओके, सो उसका प्रूफ कैसे होगा? अब देखो जैसे लाइट आती है, ठीक है, लाइट आती है, लाइट निकल जाती है, मतलब लाइट को छोड़ दो, कोई पार्टिकल है, अगर मान लो ये रोटेटिंग व्हील है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल इस साइड से स्ट्राइक करेगा तो रोटेटिंग व्हील इस साइड घूमेगा, कोई पार्टिकल इस साइड से स्टार्ट करेगा तो इस साइड से घूमेगा. अगर पार्टिकल लगातार रोटेटिंग व्हील से स्ट्राइक होंगे तो वैसे से घूमना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा. दिस रोटेटिंग व्हील, अगर कैथोड रे के अंदर पार्टिकल, रे से तो घूमेगा नहीं, रे तो सीधा निकल जाएगी. अगर कोई वेव है तो वो तो सीधी निकल जाएगी. अगर वेव के अंदर पार्टिकल है तो पार्टिकल इस व्हील से टकराएंगे, जो व्हील यहाँ पे मेंशन है, व्हील से टकराएंगे तो व्हील क्या करेगा? रोटेट करना शुरू कर देगा. जो टकराते रहेंगे व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा. सो ये प्रूव करने के लिए कैथोड रे मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उन्होंने क्या किया? सेम स्पिन व्हील लिया, कैथोड रे फेंकी, कैथोड रे फेंकते क्या हुआ? कैथोड रे फेंकते क्या हुआ? इस स्पिन व्हील ने क्या किया? इस स्पिन व्हील ने रोटेट करना शुरू कर दिया. इस स्पिन व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया. इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया. इसका मतलब है कि ये जो रे जा रही है, ये जो वेव जा रही है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं जो इसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, ओके, और इसको रोटेट कर रहे हैं. सो सेकंड प्रॉपर्टी दैट कैथोड रे, सेकंड प्रॉपर्टी दैट कैथोड रे इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स by proved by the same experiment by taking spin wheel in the center. So when we put when cathode rays was made to fell on the, when cathode rays fell on the spin wheel, it started rotating. It started rotating, it means the cathode rays are definitely made of particles. Wave कभी मूवमेंट नहीं करा सकती, पार्टिकल टकराएगा तभी क्या करेगा? कोई चीज हिलेगी. ओके, सो दिस वाज अगेन प्रूफ. नाउ वी नो दैट दिस पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दिस वाज द सेकंड थिंग व्हिच वाज डन इन दिस वे. ओके, दिस वाज द सेकंड थिंग व्हिच वाज डन इन दिस वे. Okay, and again for the next I will continue the same diagram. तो उसको मैंने मिटा दिया, इसको यहाँ से फिर से बना लो. ठीक है, यहाँ से फिर से बना लो. ठीक है, अब दो हो गया सब. कैथोड रे इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ये हो गया. अब इसका थर्ड डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? Third property, cathode rays have heating effect. Cathode rays have heating effect. Have heating effect. Cathode rays have heating effect. Cathode rays have heating effect. Cathode rays have heating effect. Heating effect का मतलब है अगर ज्यादा देर तक तुम कैथोड रे किसी के ऊपर फोकस करोगे, when you this cathode ray are made to fall on object for a longer time, then that object will get heated up. That object will get heated up. So this is fourth property, that cathode rays. Third property, cathode rays have heating effect. यहाँ पे उन्होंने कोई object लगा दिया. This is anode. This is zinc screen. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कोई object रख दिया, उस पे लगातार उन्होंने काफी समय तक cathode ray को strike किया. So after some time they saw that this object got heated up. Cathode ray के continuous contact में आने की वजह से this object got heated up. It means that cathode rays have heating effect, means they can heat up something. Okay, this was the third property. Heating effect, made up of particles, travel in a straight line. These are the three properties. Okay, अगली property है इसकी कि अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया?
कैथोड रे जा रही थी, ओके, मान लो कैथोड रे है, ठीक है, कैथोड रे जा रही थी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। अब कैथोड रेज आर देमसेल्फ नेगेटिवली चार्ज, दीज आर कैथोड रेज, दीज आर कैथोड रेज। तो कैथोड रेज जा रही थी, बीच में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। सो नाउ यू टेल दैट टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन द कैथोड रे विल बेंड, कैथोड रे विल बेंड टुवर्ड्स व्हिच टर्मिनल, definitely negatively charged rays, and these are negatively charged rays originated from cathode, so they will bend towards positive terminal. So this shows that cathode rays bend towards the cathode rays bend, वैसे तो स्ट्रेट चलती हैं पर कोई फील्ड लगा दी, फोर्स लगा दी, cathode rays bend towards the positive terminal of the positive terminal of the electric field, to the positive terminal of the electric field. It shows that cathode rays are themselves negatively charged. It shows that cathode rays are themselves negatively charged. अगर ये positively charged होती तो नेगेटिव की तरफ जाती, अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही है, positive portion of the electric field, then it means that cathode rays are themselves negatively charged. So this was the fourth property. Property तो पता थी, बस उसको प्रूव करना पड़ना ना, so this was proved also. ठीक है, this was proved also that fourth is cathode rays. Write it down with me. Cathode rays move towards the positive terminal. Towards the positive. This is positive. Move towards the positive terminal of. Move towards the positive terminal of electric field. Electric field. It shows that they are themselves. Negatively charged, that they are themselves negatively charged. इसका क्या मतलब हुआ कि वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रन करेगी. इट मींस दे आर themselves negatively charged. So this is the fourth property of cathode ray. They travel in a straight line. They are made of particles. दोनों स्पिन व्हील से प्रूव हो गए. थर्ड, they have heating effect, proof. Okay. Fourth, they are negatively charged because they move towards the positive terminal of the electric field. They move towards the positive terminal of the electric field. Okay. अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, that we will do. That next property which we are going to discuss is the fifth property is cathode rays produce X-rays. Cathode rays produce X-rays. ठीक है, कैथोड रेज क्या करती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं. कैथोड रेज एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं. ठीक है, अब कर ही सकती हैं कैसे, एक्स रे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोड्यूस कर सकती है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बहुत ज्यादा स्पीड से, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बड़ी ज्यादा स्पीड से. ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट को ये हिट करेंगे तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी, ऑब्जेक्ट इनको अंदर नहीं जाने देगा. मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इनको पेनिट्रेट ना करने. इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग विद फुल स्पीड, फुल एनर्जी. सो दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ सब्सटेंस. यहां पे टकराएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, डी एक्सेलरेट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, डी एक्सेलरेट. इनकी ज्यादा स्पीड से टकराते का स्पीड कम हो जाएगी, सो ये स्लो हो जाएंगे. बट जब ये स्पीड में थे तब इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी. अभी डी एक्सेलरेट हो गए, स्लो हो गए, तो इनकी एनर्जी खत्म हो गई है. वो जो एनर्जी थी वो लॉस हो जाती है. दैट एनर्जी इज लॉस्ट. जब टकराते हैं इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, वो लूज कर देंगे, और उस एनर्जी को लूज करते क्या हो जाएंगे, ये स्लो हो जाएंगे, ये बिल्कुल बैठ जाएंगे. दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज. दैट एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो मूवमेंट करने के टाइम देगी, दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज. गॉट इट. सो एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब किसी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन बीम को हम किसी ऑब्जेक्ट से डी एक्सेलरेट करें, सो द एक्स्ट्रा एनर्जी दे लूज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज. That's why this X-rays are produced. So you know X-rays
कैथोड रेज किससे बनी? इलेक्ट्रॉन से बनी है। जब कैथोड रे जा रही है मतलब इलेक्ट्रॉन फुल स्पीड से जा रहे हैं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कराया तो उसमें से एक्सरे निकली, डेफिनेटली निकलेगी, क्योंकि आज हमको पता है एक्सरे बनती इलेक्ट्रॉन को स्लो करने से है। तो कैथोड रे में है क्या? इलेक्ट्रॉन है। जब कैथोड रे को रोकोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो उनकी स्पीड की वजह से थी दैट विल गेट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज। सो कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स-रेज। गेटिंग द पॉइंट? सो नाउ I will be discussing the next property, that is the last property. As the property बहुत है, main property यही है, sixth property आ गई है cathode rays. Cathode rays are independent of the gas taken in the discharge tube, and type of electrode used and type of electrode used. ओके, अब उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट में पहले हाइड्रोजन गैस के थोड़े से मॉलिक्यूल रहने दिए, फिर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की, कॉपर की, ग्रेफाइट की, ठीक है, जिंक की, सबकी इस्तेमाल करके देख ली, पर कैथोड रे से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है गैस जो मर्जी ले लो अंदर, इलेक्ट्रोड जिस मर्जी की ले लो, कैथोड जिस मर्जी की ले लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। कैसे? क्योंकि कैथोड रे मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं। इलेक्ट्रॉन्स है जिंक निकाले, ठीक है, चाहे प्लेटिनम निकाले, चाहे प्लेटिनम निकाले, चाहे कॉपर निकाले, जिस मर्जी की इलेक्ट्रोड है, वट एवर मेटल दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ, जिस मर्जी मेटल इलेक्ट्रॉन निकाले, अपने को इलेक्ट्रॉन निकल गए, so all the metals can generate electrons, so no effect कि सिर्फ जिंक वाले ही इलेक्ट्रॉन, only zinc metal can electrode made of zinc can release electrons, ठीक है, electrode made of copper can also release electrons, so no use of this electrode of whatever metal you use, you are going to get the same cathode ray, okay, because cathode is electrons, moving electrons is cathode ray. Second point, गैस का कोई काम ही नहीं है, गैस को तो हमें निकालना है ताकि वो बीच में इलेक्ट्रॉन को रोक ना ले। चाहे नाइट्रोजन गैस उसको भी वैक्यूएट करना है, हाइड्रोजन गैस उसको भी वैक्यूएट करना है, जो मर्जी गैस भर लो, वैक्यूम पंप क्या करेगा उसको? वैक्यूम पंप क्या करेगा उसको? इवैक्यूएट करेगा। ओके, तो गैस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, व्हील से पता लग गया, पार्टिकल है उसमें, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, व्हील से पता लग गया। थर्ड, this move towards the positive terminal of the electric field means they are negatively charged, okay, produce x-rays. Why? Because electrons when deaccelerated, it is made up of electrons when deaccelerated automatically will produce this x-rays. Fourth, heating effect है, फिर हीटिंग इफेक्ट है, हीट करती है, डेफिनेटली हीट करती है, किसी को भी हीट करेगी, उसको हीट करेगी। बाय बिकॉज एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, दे विल हीट अप। सेकंड, जो मर्जी इलेक्ट्रॉन ले लो, जो मर्जी गैस ले लो, कैथोड रे वैसे चलेगी। Why? I have told you. So these were the six properties, six main properties of the cathode ray. Okay. In the next lecture, I will be discussing this anode ray tube experiment, means discovery of this proton. Then we will find the charges of electron and proton.